Good evening, everyone. My name is Akram, and I'm a spoken English trainer. Well, in this class, we have brought so many tips for you to become fluent. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर मैं इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। मुझे अच्छी ग्रामर आती है, अच्छे से वोकेबलरी आती है, सब कुछ होने के बावजूद मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए। तो जो टिप्स मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ वही टिप्स मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर इफ यू इम्प्लीमेंट दीज टिप्स you will become fluent for sure, right? So let's begin without any further delay. Yeah. So everybody, first of all, we need to break this myth. So some people think this way: only intelligent people speak English. So ये एक बहुत बड़ा myth है. I would say that do not think this way. ठीक है? Second, I can't speak this language. So first of all, you need to break this myth that only some people can speak fluent English. You can also speak. It is just you need to try the way everybody is trying. Okay, there are so many people who are not intelligent, however, they speak English effectively. They speak as effectively as other people, as intelligent people, right? So it means if they can speak, you can speak too, right? So it is completely okay that अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं उसके बावजूद आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं. It is just you need a proper guidance and you need a very good teacher. Along with that, you need some tips, right? And you need to implement these tips actively, practically. Only then they will work, otherwise they will not. तो आपको लेके चलते हैं पहली टिप की तरफ. Ready? Let's go. So that was tip number one, and this is tip number two. Speak English daily. So, people, whether you want it, you don't want it, you have to speak. तो कुछ लोग बोलते ही नहीं है. अब जब हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो इंग्लिश कैसे आएगी? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी स्पीक हिंदी, राइट? हम हिंदी बोलते हैं. इसी तरीके से हमें इंग्लिश भी बोलनी है. जहां कहीं भी आपको लगता है कि हाँ ये मौका है मेरे पास, I have this opportunity, I can speak English, there do not speak Hindi at all. Do speak English. Whether you speak one sentence, two sentences or many, please do speak in English. तो हर रोज आप इंग्लिश बोलें. Now the question comes here, who to speak English? That is a question. Who to speak? किसके साथ बोलें? Right? So you can speak English with your colleagues, with your friends, and with the people who aim to learn English. They are the right people. ठीक है? तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंग्लिश में बातें करेंगी और ऐसे लोगों के साथ इंग्लिश में रहेंगे कुछ टाइम तक, तो आप देखेंगे कि हाँ ग्रेजुअली आप अच्छे होते जा रहे हैं. डे बाय डे यू आर गेटिंग बेटर इन योर कॉम स्किल. देखो इंग्लिश आती है प्रैक्टिस से. जब हम रोज बोलेंगे रोज बोलेंगे रोज बोलेंगे, वन डे यू विल बिकम फ्लुएंट एंड नथिंग कैन स्टॉप यू. आई गारंटी. इफ यू स्पीक एवरी डे you will become confident, you will become fluent, you will become accurate. ठीक है? सो आज से एक काम कीजिए, जस्ट speak every day. No matter you speak for 5 minutes, you speak for 10 minutes, or you speak for 15 minutes, or you speak for 1 hour. Please do speak. ठीक है? तो इसके अलावा और आप किससे बातें कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. ठीक है? क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं लाइक आई हैव नो वन टू टॉक टू. मेरे पास कोई नहीं है, लाइक आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश और टू लर्न इंग्लिश. वेल इन दिस केस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको करनी चाहिए मिरर टॉकिंग, और यू कैन से टॉक टू द मिरर. तो टॉक टू द मिरर और टॉक टू योरसेल्फ. You won't believe this tip really works. There was a time I was learning this language, and my teacher told me to do this. I did it, and gradually I saw that yes, I was improving. तो अगर मैं improve कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं. Everybody can do this. It is just we need to implement this. हाँ,
शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे दैट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, इन दैट केस यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, यू नीड टू टॉक टू दैट मिरर। इससे होगा क्या, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड इफ योर स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रांग, इफ दीज आर स्ट्रांग, यू विल बिकम स्ट्रांग, राइट। सो हमें क्या करना है, हर रोज बातें करनी है। चाहे हम थोड़ी देर के लिए बातें करें, चाहे हम 1 घंटे बातें करें, आधे घंटे, 2 घंटे, पूरे दिन, लेकिन रोज बोलना है, ठीक है। द मोर यू स्पीक, द बेटर स्पीकर यू बिकम, एंड द लेस यू स्पीक, nothing is going to happen, right? You will remain as you are now, so we need to speak, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, आप उनसे बातें कीजिए, और अगर फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, देन टॉक टू योरसेल्फ, डू दैट मिरर प्रैक्टिस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो दूसरी टिप है, हमें बोलना है, एंड हमें हर रोज बोलना है, ठीक है। सो लिसन टू इंग्लिश, लिसन टू इंग्लिश एवरी डे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश धीरे धीरे आप बोल पाएंगे, ठीक है। देखो, जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम हिंदी सुनते हैं, यस, हिंदी वर्ड्स, हिंदी सेंटेंसेस। तो हमारा जो इनपुट है वो हिंदी है, क्योंकि हमारा इनपुट जितना भी है हिंदी का है, तो हमारा आउटपुट भी हिंदी ही होगा, ठीक है। तो प्लीज लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। नाउ व्हाट टू लिसन, इट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू। तो आपने क्या करना है, जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होती हैं, और इंग्लिश टॉक शोज होते हैं, एंड यूट्यूब पे आपका जो जितना भी पॉडकास्ट है, राइट, जो इंग्लिश में है, सारा का सारा जो इंग्लिश सिखाने की बात करता है, इंग्लिश कैसे बेहतर हो, वो कैबलरी वगैरह देता है आपको, वो आप रोज सुनिए। तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ईच डे, यू लिसन टू इंग्लिश टॉक एवरी डे, इंग्लिश टॉक शो, राइट, एंड यू लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उस केस में आई वुड रिकमेंड कि आप बीबीसी न्यूज को भी सुनिए, ठीक है। तो बीबीसी न्यूज को आप सुनेंगे, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को सुनेंगे, ग्रेजुअली यू विल बिकम बेटर, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। तो प्लीज, अगर आप अभी तक इंग्लिश नहीं सुनते हैं, प्लीज मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, द वे यू हैव फूड एवरी डे, the way you go to school, the way you go to work and you work over there. Similarly, listen to English every day. इससे बहुत सारी चीजें होंगी, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, किसी बात को कैसे कहते हैं ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, आपको वो एक वे पता लगेगा, और अगर वे पता लगेगा तो ऑफ कोर्स आप उसको सीखेंगे और बोल भी पाएंगे। तो लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट एवरी डे, डजेंट मैटर यू लिसन टू देम फॉर 10 मिनट्स और 20 और 30 और 1 आवर, ठीक है, एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी आप उसको सुनेंगे, लेकिन जरूर सुने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू टिप नंबर 3, think in English and try to speak. Think in English. So there are so many people, what they do is they translate before they speak. जैसे मैं जाऊंगा, मैं I will go, मैं कल गया था, past I went, ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ना कोशिश करो कि ये आप ना करें, ठीक है। थिंक इन इंग्लिश विच मीन्स आप हिंदी जानते ही नहीं है, ऐसा आप लेके चलें। अब आपको फील करना है, और जो इंग्लिश आपको आती है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, हाँ मैं जाऊंगा, करूंगा, यस आई विल स्पीक, आई विल गो, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट इन दिस। पास्ट की बात हो रही है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा आपको ये करना ही पड़ेगा दैट यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश ओनली if you really want to become a very good speaker of this language. Start thinking in English. जब आप हिंदी बोलते हो, तो क्या आप हिंदी के सेंटेंस पहले ट्रांसलेट करते हो? नहीं करते हो ना, फिर इंग्लिश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अगर आपका एक अच्छा लेवल है, अच्छा खासा लेवल है, और आपको ठीक से इंग्लिश आती है, उस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश में ही सोचें। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आई एम श्योर यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इनटू योर इंग्लिश, राइट? यस, ऑफ कोर्स। तो एक टाइम था, मैं भी यही करता था, राइट। आई यूज्ड टू थिंक एंड ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश, एंड आई यूज्ड टू स्पीक।
Then there was a teacher who advised me not to do this, and I stopped doing, and today you can see I'm all the way fluent, right? And there are so many people in the world, they do not think in their mother tongue and translate everything and then they speak English. Nobody does it. So why are you doing it? So let us not waste time translating the things in our head. You need to feel that language. उस लैंग्वेज को महसूस कीजिए, ठीक है? उसी में आप सोचिए और उसी को आप बोलिए, ठीक है? सो आई होप आप ऐसा करेंगे और अगर आप ऐसा करते हैं कि हाँ, मैं और कोई लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, मैं केवल इंग्लिश को जानता हूँ, तो आप लाइक यू विल फाइंड वन वे टू स्पीक वन पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है? तो ये आप इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सो प्लीज स्टॉप ट्रांसलेटिंग थिंग्स इन योर बिफोर यू स्पीक। फील इंग्लिश, think in English, and speak in English. Okay? Stop translating. Now, tip number 5. Don't worry about mistakes. No fear at all. So, अगर आप मिस्टेक से डरते रहेंगे, like if I speak, I will make a mistake, or when I speak, I will make mistakes and people will laugh at me. If you keep on fearing like this, nothing is gonna work for you. You need to speak. If you make a mistake, it is completely okay. ठीक है, आप उसको करेक्ट कीजिए, दोबारा बोलिए, करेक्ट कीजिए, दोबारा बोलिए। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, ग्रेजुअली आप फ्लुएंसी की ओर चल रहे हैं, ठीक है? सो ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है इन दिस वर्ल्ड जिसको कोई भी व्यक्ति बिना मिस्टेक करे सीख जाए। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद इंग्लिश बोलते वक्त डर महसूस नहीं। इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, इट इज ओके, कीप स्पीकिंग, वन डे यू विल रीच योर गोल, ठीक है? आप हो सकता है आज मिस्टेक करें, ठीक है? फिर आपको रियलाइज हो कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं, लाइक आपने बोल दिया येस्टरडे आई डिड वेंट टू द मार्केट, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे डिड नहीं बोलना चाहिए था, वेंट बोलना चाहिए था। येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। इट इज कंप्लीटली ओके इफ यू करेक्ट योरसेल्फ। इफ यू आर करेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर लर्निंग। आप बोल देते हैं और आपको रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने मिस्टेक कर दी, वहां पे एक, लेकिन आपने बोला और आपको तुरंत ही रियलाइज हो गया कि हाँ, मैंने मिस्टेक की है, देन इट्स ओके। आप उसको दोबारा से बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि हम बोलते वक्त घबराएं ना, डरे ना। अगर हम ऐसे डरते रहेंगे तो फिर कोई चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो जो भी आपको ग्रामर आती है, जो भी आपके पास वोकैब है, ठीक है? जितनी भी आपके पास नॉलेज है, प्लीज़ उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको, जैसे मैं एक दो सेंटेंस लेके चलता हूँ, मान के चलो आप ये कहना चाहते हो, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा। सो लेट्स अस्यूम आपको केवल इतना इंग्लिश आती है कहना कि मुझे पता है, वो आएगा ये कहना आपको नहीं आता है। तो आप इतना तो इंग्लिश में बोलो, आई नो कि वो नहीं आएगा। तो आई नो कि वो नहीं आएगा, हाफ इंग्लिश, हाफ हिंदी। या मुझे पता है इसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है, लेकिन वो नहीं आएगा, इसकी इंग्लिश आती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं और आपको बोलना चाहिए मुझे पता है दैट ही विल नॉट कम, या मुझे पता है कि यू नो ही विल नॉट कम। तो ऐसे करके कुछ, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, मैं कल पार्टी में जाऊंगा, आई विल गो टू द पार्टी टुमारो। तो जितनी इंग्लिश आपको आती है, प्लीज उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। एक चीज बार बार बोलें, बार बार बोलें। आपको वांट टू, हैज टू, हैव टू, शुड, कैन, जो चीज आती है उसको बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि यस, चीजें बहुत स्मूथ हो रही हैं एंड आप इंग्लिश बोलते वक्त डर नहीं रहे हैं। आपको जो एक फोबिया पहले था, वो अब फोबिया धीरे धीरे जा रहा है। तो आप क्या करें, जितनी भी आपको इंग्लिश आती है, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं या आपको आपने खुद पढ़े हैं, जितने भी आपके पास वोकैब है, आ रही है, ठीक है, जो आपको आती है, उसको प्लीज यूज करें। जो चीज आपको नहीं आती है, आप पूछें, ठीक है? आस्क योर टीचर्स, आस्क योर ट्रेनर्स, आस्क मी इफ यू आर माई स्टूडेंट, आई विल टेल यू हाउ टू मेक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। ओके, यस। सो डू नॉट वरी अबाउट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स होंगी, होने दो, बट वी नीड टू कीप ऑन स्पीकिंग, ठीक है? यस, आगे चलते हैं। नाउ टिप नंबर 6, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन। तो रिकॉर्ड, लाइक you have a phone, there is a recorder,
तो इसमें क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हमें लेना है, जैसे माय फादर, ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे पापा के ऊपर जो भी मैं बोल सकता हूँ, 10 लाइन, 5 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, वो मुझे बोलनी है। उसके बाद क्या करना है, आई विल लिसन टू इट, राइट, एंड मैं देखूंगा कि ऐसा क्या था जब मैं इंग्लिश बोल रहा था तो मुझे प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे कि मुझे वोकैब नहीं मिल रहा था, या मेरे ग्रामर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, या क्या प्रॉब्लम थी। यू विल गेट अ चांस टू असेस योरसेल्फ। सो एटलीस्ट आपको पता है कि मुझे काम कहाँ पे करना है, ठीक है। तो जब आप अपने आप को सुनेंगे, यू विल come across some mistakes. So it could be related to your pronunciation, grammar, vocabulary, और या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप सुनेंगे तो उसको पकड़ पाएंगे, और जब आप पकड़ पाएंगे तो अपने आप को आप सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं। तो हर रोज क्या कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स लीजिए और उनके ऊपर बोलना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने बोल दिया माय फादर, ठीक है, कभी बोल दिया दिल्ली के बारे में, ठीक है, कभी बोला इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो ऐसे चीजें आप करना स्टार्ट कीजिए और देखिए आप कहाँ पे सबसे ज्यादा लैग कर रहे हैं। क्या आपको वोकैब की कमी हो रही है, या आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे हैं, या बस दो चार ऐसी बातें जहां पे आप अटक जाते हैं। अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ चांस टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है। जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं आप उस पर काम कीजिए। एंड ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सीरियसली करते हैं हर रोज 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो द रिजल्ट will be shocking. So please do this if possible, right? Yeah. Now, moving to tip number 7, speaking, listening, practice, vocabulary, and pronunciation. Everything 10 minutes every day. कम से कम इतना आपको करना ही करना है। तो हर रोज 10 मिनट आप इंग्लिश में कम से कम बोलें, ठीक है। मैंने बोला कुछ भी कोई भी आपको व्यक्ति जो इंग्लिश बोल सकता है उसके साथ इंग्लिश में टाइम स्पेंड। कोई नहीं बोल सकता, कोई है नहीं आपके पास अवेलेबल, इन दैट केस टॉक टू योरसेल्फ। कुछ एप्स अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कीजिए एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू दीज एप्स, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ look for a person who can listen to you, because when we speak English with feelings, है ना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं फीलिंग्स के साथ, तो there should be a person to understand those feelings. तो ये इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि मेक श्योर फर्स्ट आप थोड़ा सा अरेंज कर सकें, तो इट शुड बी अ ह्यूमन, ठीक है। और इन केस नहीं है तो या फिर हम एप्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हर रोज 10-10 मिनट करना ही करना है। हर रोज 10 मिनट आप स्पीकिंग कीजिए, ठीक है। हर रोज आप 10 मिनट लिसनिंग कीजिए। लिसनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप लिसनिंग में आप बीबीसी को सुने, ठीक है, आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुने यूट्यूब पे, इंग्लिश पॉडकास्ट सुने, ठीक है, और इंग्लिश स्टोरीज सुने, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। प्रैक्टिस, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज के अंदर मैं लैक कर रहा हूँ, या मुझे भी अच्छे से अब कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, उस पर प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपको आता है उस पर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी तो हर रोज क्या करें, 2, 4, 6, 10 जितने वर्ड्स आप सीखते हैं न्यू, एक डायरी मेंटेन करें और वहां पे उन वर्ड्स को लिखें, और हफ्ते में कम से कम एक बार उन वर्ड्स को जरूर देखें और उन वर्ड्स को हर रोज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि मैंने वर्ड्स लिखे थे लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप वर्ड्स सीख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। तो इफ यू डू इट, आई एम श्योर यू विल बिकम फ्लुएंट। यस। Now, last but not the least, tip number 8, positive mindset, which means I can and I will. So, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जब हम इस माइंडसेट से चलते हैं कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी स्पीकिंग, इवन अ चाइल्ड कैन स्पीक, व्हाई नॉट मी, मैं भी बोल सकता हूँ। तो ये जो माइंडसेट है, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा भी, ये आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनाएगा।
So if you want to become a very good orator of this language, just have this positive mindset. I will because I can. ठीक है? यस, तो ये कुछ थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने आपको दी, ठीक है? और आप प्लीज आप इन सभी टिप्स को प्लीज डू इम्प्लीमेंट बिकॉज दे विल वर्क, दे विल वर्क फॉर श्योर, ठीक है? इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, DSL आ सकते हैं मुखर्जी नगर. इफ यू वांट वन टू वन सेशन दैट इज आल्सो पॉसिबल. ओके, इफ यू वांट ग्रुप क्लासेस इवन इट इज पॉसिबल हियर, ठीक है? So here we try to make you a very good orator. We give our best to make you an effective speaker. So I hope you found this lesson very useful, and I believe that you will implement all the tips. Okay, no matter what. Yes. So these are the tips for you which I give you. Thank you so much for watching this video. I will see you in some another video. Till then, bye bye.